ٹھیک ہے. وہ آیا تھا غلام احمد کا کیا نام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال ان کا کوئی بندہ آیا تھا، وہ صدر بتا رہے تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ امتی نبی کا دعویٰ انہوں نے کیا، تو کہا ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. ہاں جی وہ ہم نے سن لیا ہے. اچھا سننے آپ کا لکھتے موقع ہیں دیں گے. جی. ان کے بعد آپ کی باری ہے. پپو صاحب ہولڈ رکھیں ذرا. اچھا بات یہ ہے کہ سید صاحب یہ بات کر رہے چلے گئے ہیں، میں اپنی بات کر بھی لیتا ہوں. دیکھیں یہ جو بنی اسرائیل والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ تو مذمت کے بھی قابل نہیں ہیں، کہاں ان سے بات کی جائے. اور سید صاحب تو ابھی چلے گئے ہیں، اگر ہوتے میں ان کو کہتا. میں دیکھتا ہوں سید صاحب وہاں جا کر ان سے باتیں کرتے ہیں، ان سے کیا بات کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ قرآن ہے. آپ کسی جو ہے کٹر ملحد سے پوچھ لیجئے، وہ کہے گا یہ قرآن محمد پہ نازل ہوا، وہ نہیں کہے گا مجھ پہ نازل ہوا. یہ وہ لوگ ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ پہ نازل ہو رہا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں. اس سے کیا بات کریں گے آپ؟ ابھی ان سے بات کی جا رہی ہے وہاں پہ، وہ کہہ رہے اللہ کا نام دکھاؤ کہ اللہ نے اپنے آپ کو اللہ کہا ہو. بتاؤ، قرآن سے حدیث سے کہیں پہ دکھا دو کہ اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہو. ایسے جو ہے انسان سے آپ کیا بات کریں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور ہم خود جا کر ان سے بات کرتے ہیں اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے. کچھ لوگوں کو تو برا تو لگے گا، لیکن میں جو ہے اپنی بات کرتا ہوں، برا لگے نہ لگے اچھا لگے جو بھی ہو. بھائی خواہ مخواہ آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، کوئی بھی تک نہیں بنتا ان سے بات کرنے کا. ہندو سے بات کرو، کرسچن سے بات کرو، ملحد سے بات کرو، قادیانی سے بات کرو، جس سے چاہو بات کرو. لیکن ایسے لوگ جو کہتا ہے یہ قرآن مجھ پہ اتر رہا ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اللہ کا نام اللہ نے نہیں بتایا قرآن میں، اس سے آپ کیا بات کریں گے؟ وہ تو گالی ہی دے گا. یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے جو بھی ایسا کرتا ہے. میرا یہی مشورہ ہے، میرا یہی ماننا ہے، مجھ پر اسی پر انشراح. یہ مذمت کے بھی قابل نہیں ہے. آپ لوگ جا کر ان کی جو ہے بروڑوں کو آباد کرتے ہیں اور جن کے جن جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے. جی بہت شکریہ. وہ چلے گئے جی پپو فیشل صاحب. نہیں مجھے تو کافی مہینے ہو گئے ہیں، ضیاء رسول اور میں 2-3 دن اکٹھے جاتے رہے ہیں، اور اس کے بعد کافی مہینوں سے ہم کبھی ان کی براڑ پر ہم نے قدم نہیں رکھا. ہاں 1-2 دفعہ طلعت ظہور ملک کی براڑ پر ان کو وہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا درے مارنے کے انداز میں. لیکن پھر ایک بات ان سے ہوئی ہے کہ اگر ان کو کوئی قرآن اور حدیث کے بارے میں یا مسلمانوں کی شریعت کے اوپر یا ہمارے قائد کے اوپر کسی قسم کا کوئی سوال کرنا ہے، وہ ہماری براڈ پہ آ کے کریں. ابھی بھی ان کو یہی کہہ کے آئے ہیں، سوال کرنا ہے ہماری براڈ پہ آ کے کریں، وہاں آپ سے کریں گے، ہم سوال کریں گے. تو یہاں کوئی ملحد بھی آ کے سوال کر سکتا ہے، کوئی کافر ہندو سکھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ بھی کر سکتے ہیں. سوال ہی انہوں نے کرنا ہے نا. جس طرح وہ دن کے وقت 3-4 سوال انہوں نے کیے، ہم نے جواب دی. میرا نہیں خیال کہ کسی کے سوالوں سے ہمیں گھبرانا چاہیے، بھاگنا چاہیے، الا یہ کہ وہ کوئی گستاخی کریں. تو گستاخی کی اجازت آپ تبھی ان کو روک سکتے ہیں جب آپ کے اپنی براڈ ہو. اسی لیے کہا ہے کہ وہ ہماری براڈ پہ آ کے سوال کریں. یہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر ایسے ہی بس وہ گستاخی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے کہا کہ آپ یہاں آ کے سوال کریں اگر آپ کو کوئی سوال کرنا تھا. دیکھیں عامر رضی صاحب، دیکھیں میں نے تو یہ بات کہی، میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ کسی سے بھی میں نے کہا جو اللہ کو بھی نہیں مانتا ہو اس سے بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کلا ڈلا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. یا سکھ ہے، عیسائی، کسی سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن جو یہ کہے میں رسول ہوں، مجھ پہ یہ قرآن اتر رہا ہے، اس سے آپ کیسے بات کریں گے؟ کوئی لٹریچر ہے نہیں اس کا، قرآن اسی کا اس پہ اتر رہا ہے، اس پہ آپ کیا بات کریں گے؟ وہ شاطنیت کر رہا ہے. مجھے بتائیں، دیکھیں میں بات کروں گا ملک صاحب سے، کیوں؟ ان کے بھی کوئی کتاب ہے، کوئی شریعت ہے، کوئی بلیو ہے، کوئی ماننا ہے. میں بات کروں گا کسی سکھ سے، اس کا کوئی ماننا ہے، ہندو سے ماننا ہے، ملحد کچھ نہیں مانتا. لیکن جو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجھ پر اتر رہا ہے، میں رسول ہوں اور بات کروں گا قرآن سے، اور قرآن کا ترجمہ کر کے اپنی طرف سے
लुगत से तर्जुमा करके आपको बताएगा। क्या बात करेंगे आप मुझे बताइए। आप मुझे बताएं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम कुरान से दिखा दीजिए। ये सवाल है भाई, कहाँ है नबी का नाम, कैसे दिखाएंगे आप? आप कहेंगे मोहम्मद और रसूलुल्लाह, कहेंगे मोहम्मद तो वो नहीं है। लुगत से देख लीजिए मोहम्मद का नाम क्या, हम्द करने वाला, कहते हम मैं हम्द कर रहा हूं अल्लाह का, बात करने का मौका दें तक उससे। हाँ अमर रजी साहब क्या बात करेंगे जो ये कहे मोहम्मद को आपने लुगत। भाईजान पप्पू क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया भाईजान? आप गए कि आप वापस आए हैं, होल्ड रखें अपनी बारी का बात को इंतजार छोड़ करें। रखे ना। आपकी बारी थी, आपको तलाश करते रहे, आप चले गए थे। अब आप होल्ड रखें, फिर अस्कानी भाई बात कर लेते, आपको मौका देते। साहब आमिर आमिर रजीक साहब बात सुने। आमिर साहब इन्होंने तकरीर शुरू कर दी है। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ रखे ना खामोश बात रहता हूँ, आप आप बात कीजिए। मैं तकरीर नहीं खामोश। सुन सकते तो हम क्या आपका मेरी इलाज? 2 मिनट की बात सुन ले, मेरी 2 मिनट की बात सुन ले, फिर अपनी तकरीर स्टार्ट कर लीजिएगा दोबारा। ठीक है भाई, आप बात कीजिए। इमरजेंसी है भाई आप। मैंने भैया आप एक मैंने मिनट आमिर की साहब बात को है, ये उसके कहना बाद 2 मिनट ज़िया बोलेंगे। भाई ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ज़िया भाई। आमिर साहब मैंने सिर्फ इतना ही कहना है कि यहाँ पर ये अमन आशती की बात नहीं हो सकती, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो यही आपका रह गया, सिर्फ यही मतलब रह गया कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है सिर्फ। और नुमान साहब थोड़ा सा सब्र भी कर लिया करो, क्या आपको मिर्जा साहब तसल्ली भी ने चाहिए होती है। भाई अमन क्या और बोल रहे थे साहब? अमन और आश्ती के साथ ही हम कुछ बात नहीं, मैं यही कह रहा था कि नुमान साहब थोड़ा सुकून कर लिया करें, शोर ही डाल देते हैं आगे। नीचा किसी को मेरा नहीं सिर्फ दिखा इतना रहे। कहना था कि आपका हम अमन की बात भी तो कर सकते हैं ना। मिर्जा साहब ने एक दावा पेश किया, उस पर जिनकी तकदीर में था जिनकी तकदीर में हिदायत थी उन्होंने हिदायत पा ली, बाकी सब लगे हुए हैं लाइन में। तो मिर्जा साहब अगर ने- उनकी बात जिनको ना समझ में आई, जिनको समझ में ना आई बात, तो वो अपनी लगे रहे ना। वो सुने, जबरदस्ती सुने, थोड़ी है कोई। सुने ना, सुबह शाम मिर्जा मिर्जा साहब साहब, ने सुबह शाम मेरी मिर्जा बात- साहब, अब जवाब मिर्जा साहब सुनिए। का नाम लेके आप लोगों की सुबह अब होती जो है। आप सुनेंगे, जवाब सुनेंगे कि जी नहीं? जी 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 मिर्जा जी साहब हुक्म ने करें। मिर्जा साहब ने एक झूठा दावा किया, जिनकी बदबख्ती थी वो उनके चुंगल में आ गए, अपनी आंखों से नहीं नहीं नहीं, देखें फिर ये बदजुबानी, आमिर साहब आप तो ये एक्सपेक्ट नहीं खामोश करता। रहें, आपको खामोश करवाया गया है। जब आपको कहा गया आप अपनी बारी में बोलें, आप बोले तो मैंने सारी बात आपकी सुनी है। आप ले सलाम शुरू हो गए, आपने कहा तफ्तीश उन्होंने नहीं हुई दावा ना। किया जिनके नसीबों में हदायत थी उन्होंने अपना लिया। अब खामोश हो जाएं। जब तक मैं 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा 2 सर मिनट। मेरी बात खत्म नहीं हुई ना, मेरी बात अभी कंटिन्यू है। देखिए आपने पहले भी मुकम्मल बात करनी थी, पीर साहब बात कर रहे थे, आपने उनकी बात मुकम्मल नहीं करनी दी, और अभी फिर आप बात करने के बाद उनको बात नहीं वो करना चाहिए। तकरीर थोड़ा कर सा रहे यार, थे सर, यूसुफी और साहब दी वो तकरीर कर रहे थे। देखिए अच्छा तकरीर करें, कर रहे थे, ना, बात अच्छा तो करें, करनी अब थी ना। आपने बात करनी है, मेरी बात सुनने। आपने बात करनी है, उसके 2 बाद मिनट माइक मेरी म्यूट बात कर सुनिए, लेना है। उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। जितनी बात आपने करनी है उतना सुनने का भी हौसला रखें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अंदर बहुत हौसला है सर। 125 साल से हम लोग सुन रहे हैं और आप लोग सुना रहे हैं। अभी लेकिन देखता हूं मैं हमारा आपका बाल की हौसला। ताकत नहीं है। आपको आपके हौसले को किसी ने टच नहीं किया, मैं दिखाता हूँ आपको आपका हौसला। करो बात। बस जुबानी नहीं होनी चाहिए, बाकी इल्म से बात होनी चाहिए, बस जुबानी अगर हुई नहीं तो होनी आप चाहिए। बता देना ये बदजुबानी हुई है। आप अपना अकीदा ओके, बयान ओके कर रहे हो सर। ना, मैंने अपना अब मेरी अकीदा बात बयान सुनिए। करना है। करो बात। आप मेरी बात सुन ले, 2 मिनट मेरी बात सुन ले, उसके बाद फिर आप लोग अपनी तकरीरें स्टार्ट कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, बात सिर्फ ये थी कि मिर्जा साहब ने एक दावा पेश किया, जिनकी तकदीर में हिदायत थी उन्होंने हिदायत पा ली, बाकी लाइन में लगे हुए हैं। अगर उनकी हुआ हिदायत उनके नसीब में तो उनको मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, सुबह शाम मिर्जा साहब यार, मिर्जा साहब को अगर अपने लोगों ने नहीं मानना, ना माने, तो उनको नीचा दिखाने पे लगे हुए हैं। जब अल्लाह ताला ने उनको इतना ऊंचा कर दिया, आप लोग 125-130 साल से लगे हुए हैं, उनका बाल भी बीका नहीं कर सके हो आप लोग। यार आप लोग क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता। मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने सही फरमाया ना कि आज का मौलवी बंदर सुअर खंजीर है। मिर्जा साहब सही फरमा के गए हैं बिल्कुल। मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम को आप लोगों ने नहीं मानना, आप ना माने, लेकिन किसी के खिलाफ भी तो इतना ना गिरे कि इंसानियत ही भूल जाएं आप। एक आपका वो मुफ्तरी मुबशिर है, मुसलसल वो ज़िया भाई जिंदगी ये है वो गुजर थे। ये अब आपने अच्छा, ये जो मुफ्तरी है और ये बंदर सुअर, ये अखलाक है? एनो अमन नज़ीर भाई रोक लो, नहीं तो मैं अब रोक ये लेना। तो भाई, हदीस है सर, ये तो अब हदीस है सुनना, सर, ये तो हदीस आपने है। बदतमीजी जो करनी थी कर ली। आप चलिए दूसरों से आपके याद 2 लेते मिनट हैं भी कि हो गए हैं, अब बदतमीजी आप न करना। खामोश रहें। अब आपके मेरी 2 बात मिनट आपने सुनना। मांगे थे, हो गए। मिर्जा साहब ने एक झूठा दावा किया, वो कज़्ज़ाब ने झूठा दावा किया, अल्लाह ताला ने उसको झूठा पूरी दुनिया में साबित किया। जुबानी 200 कर रहे हैं उलमा ने आप। उसको झूठा कहा था,
لیکن اب موروکو سے لے کر انڈونیشیا تک اس کو کذاب اور دجال مانا جاتا ہے، جس کو آپ لیسلات اور لیسلام کہہ رہے آپ ہیں۔ لوگ کذاب ہیں، دجال۔ اس جھوٹے کا جھوٹ دیکھ کر بھی کوئی بدبخت لوگوں نے اس کو مان لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کی اولاد چیخ رہی ہے، ان ماننے والوں کی آج اولادیں چیخ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہماری جان چھڈاؤ۔ کھلو پتر میں تن دساں، 2 persone fuori, mamma mia, 2 fuori. آ ہن تے سامنے۔ ہاں جی یہ موقع صرف بکواس کرنا چاہتے لوگ ہوتے ہیں، پھر علی بھائی سننا لوگ نہیں ہوتے کسی کا، سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ Lillo, Giuseppe bhai, Lillo ہوں آپ پہ۔ اگر بکواس کرنا چاہتے ہو تو سننے کل کی بھی نہیں آیا سی کرو تے نا۔ بھونک کے جی چلا گیا سی تے اج پھر وہی کام کیتا ہے۔ اے تانوں دساں امن نذیر بھائی، اے جڑا ہے نا اے جماندرو مرزئی نہیں ہے جی، اے اینے پتہ نہیں کوئی پیسے نے لیا یا کوئی ویزا لیا یا کوئی بچی لئی آ تے لے کے اے مرزئی ہویا جی۔ اے منڈا اینے آہو اے منڈا جی، اینوں تو بلا کے پوچھ لو، یہ انج دا ہی کیس ہے، یا کڑی دتی ہے اینوں انہوں نے مرزئیاں نے تے یا ویزا دیتا انہاں دوواں چوں ایک گل ہے۔ انڈین پاکستانی پاکستانی کراچی دا آ لے جاتے تے کراچی دا یا انڈیا دا ماجرا والی اردو۔ کچھ لکھن لگے ہے تھلے۔ پپو صاحب نہیں تو ہے تو دس کیا میرا نہیں ضیا ضیا پپو بھی جھوٹا۔ ضیا صاحب شرم کرو، پپو لعنت نام اللہ نہیں علی ہے الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ضیا صاحب شرم کرو، یہ دا نام ہی کس طرح کی پپو نہیں ہے تہمت لگا رہے ہو؟ اب آپ کیسی تہمت لگا رہے ہو؟ اب شرم۔ سننا، آپ نے کہا کہ مرزا قادیانی نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا نبوت کا، جن کی بدبختی تھی انہوں نے اس کو جھوٹے دعوے کو بھی قبول کیا اور مرزا قادیانی کے جھوٹ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ نواب محمد خان آف ملیر کوٹلہ کو جھوٹ بول کر اس نے کہا کہ حدیبیہ کے قصے میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیبیہ یہ پتہ ضیا نے طرف الزام گئے کیوں لگا؟ تو وہاں کئی سچے لوگ مرتد ہو گئے تھے، حالانکہ اس جھوٹے نے جھوٹ بولا۔ تفسیر ابن کثیر سے یہ بات نکال کر دکھانے والے کو میں 500 یورو انعام دوں گا، وہاں یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ جھوٹے لوگوں نے اس جھوٹ کو دیکھنے کے باوجود اس کو نہیں چھوڑا۔ آج ان کی اولاد رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، اور صبح کہتی ہے چھوڑ دیں گے، شام کو کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے۔ صبح کہتے ہیں مجھے آفیشل آ کے بتائے گا تو ٹھیک ہے ورنہ میں چھوڑ دوں گا، شام کو پھر چیخیں مارنے لگتے ہیں۔ تو آج یہ انہی کی اولاد ہے جو رو رہی ہے۔ اگر وہ بدبخت اس بدبختی میں مبتلا نہ ہوتے تو آج ان کی اولاد اس مصیبت میں نہ جکڑی ہوئی ہوتی۔ ان کی اولاد اسی وجہ سے مصیبت میں پڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کے ماں باپ نے اس کا جھوٹ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اس کو قبول کیے رکھا۔ تو اس لیے ہماری دعا ہے کہ جو بچ گئے ہیں، جتنی تیزی سے سوشل میڈیا کے دور میں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس قادیانیت کی لعنت سے نکلے ہیں، ہماری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ توفیق دے اور آپ اس گند سے نکلیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پیسے دے کر مول خریدنا کفر، یہ تو بندے کو مفت بھی وارہ نہیں کھاتا جو آپ گند خرید رہے ہیں پیسے دے کر۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ جو خوش نصیب ہیں وہ تو اسلام کر رہے ہیں، لیکن جو بدبختوں کی اولاد بدبخت ہیں ان کے نصیبوں میں یہی ذلت ہے کہ وہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے جھوٹا رکھوانا تھا وہ موروکو سے لے کر انڈونیشیا تک جھوٹا کہلواتا ہے، لیکن بدبخت لوگ اس کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ تو ان کی بدبختی ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جتنی جلدی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ان بدبختوں کی اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی اس غلطی کو پہچانے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو مروایا، ان کے باپ دادا نے ان کو مروایا، انہوں نے اپنی اولاد کو اس گڑھے میں پھینکا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ ہمت کر کے ابھی نکل جائیں نیمے ہو کے۔ ایک ہی نہ لکھیا ہویا لکھیا سوں نکل جائیں نیمے ہو کے پتر ہے تو میں نے جاندا نہیں ہے۔ یہ اپنا ضیا بھائی کی نہ لکھیا سوں امجد محمد پیو دا نام سوں امجد دا نام جے نہیں امجد دا نام اے لکھیا ہے، نہیں ایدی آئی ڈی ہے علی ایدی ہے پر نام انہیں غلط لکھیا ہے، نام امجد نہیں ہے۔ چلو اسی کی کرنا پوچھ کے جو بھی ہے، سارے جھوٹے نام رکھے ہیں۔ جھوٹیاں دا گروہ ہی جھوٹیاں دا۔ اچھا وہ اتنے نہ آیا سی اور پھر آیا جی کال بھائی ضیا بھائی چکیو ہوں، ضیا بھائی چکیو سوں گلی چ جاندے بندے کی گل کرواتی ہے تے انہیں جناب آکھیا ٹھیک ہے قبول ہو گیا۔ دیکھیں نا پپو صاحب، ان لوگوں کی بات سننے کی ہمت کریں، آپ نے بہت بول لیا، بہت بولا۔ دیکھیں کہ انہوں نے
इतना जो कहते हैं कि हमने तहकीक करके ये मिर्ज़ाइयत इख्तियार की है, हाल ये हुआ पड़ा है कि 10 साल से करके बोले जा रहे हैं, ये मिर्ज़ाइयत है, 10 साल से मिर्ज़ाइयत की दलदल में फंसा हुआ है और उसको ये नहीं पता कि मिर्ज़ा कादियानी का दावा किस बात का है। उसने कल ऐलान किया था कि अगर मुझे ऑफिशियल आके बता दें कि मिर्ज़ा कादियानी का दावा नबूवत का है, उनकी बात नबी सुनेंगे होने या का नहीं है, सुनेंगे? तो ठीक है, वरना मैं इसको 4 अरब भेज के 3 तलाकें दे दूंगा। अभी मैं इस पर लानत भेजूंगा इस झूठे मदई नबूवत पर। तो कल उसने ये वादा किया, आज गली में जाता हुआ बंदा पकड़ के उन्होंने उसको बता दिया कि मिर्ज़ा कादियानी का दावा नबूवत का है। तो कहता ठीक है, मुझे कबूल है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस बात की कि कोई तहकीक करके मुझे मेरे आगे सबूत रखो, सबूत की मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैंने आपकी बात पर एतबार कर लिया है। तो कितनी बदबख्ती है कि एक बंदा जिसने कादियानियत आज से 10 साल पहले इख्तियार की, उसको आज तक ये नहीं पता कि मिर्ज़ा कादियानी का नबूवत का दावा है या किस बात का दावा है। बाकी जो रह गए हैं मिर्ज़ाई, वो कहते हैं, कि कहता है मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफ किया जा सकता है, दूसरा कहता है नहीं किया जा सकता। एक कहता है मिर्ज़ा साहब का उम्मती नबी होने का दावा है, दूसरा कहता है गैर हकीकी, गैर मुस्तकिल और नबूवत नाक़सा का दावा है, ज़िल्ली बरूज़ी का दावा। मतलब इन बेचारों को जवाब ये भी नहीं पता, इनको ये भी नहीं पता कि मिर्ज़ा कादियानी ने झूठा दावा जो किया था वो किस बिना पर किया था। हालांकि देखें ना, नबूवत का दावा तो होता ही झूठा है। नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो भी दावा नबूवत का करता है वो मुसलमा कज़ाब का भाई है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं। खुद तो मिर्ज़ा साहब के अल्फाज हैं कि नबी पाक के बाद जो बंदा नबूवत का दावा करता है वो मुसलमा कज़ाब का भाई है। उसके बाद मिर्ज़ा साहब खुद मुसलमा कज़ाब के भाई बन बैठे। लेकिन बात यह है कि इतनी आसान बात थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ही काफ़ी था, उनकी खबर ही काफ़ी थी कि मेरे बाद 30 के करीब झूठे दज्जाल आएंगे, खुद को नबी कहेंगे, तुमने उन पर एतबार नहीं करना। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद ये झूठे मदइया ने नबूवत। असल तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर ही काफ़ी थी, लेकिन ये इतने बदबख्त हैं, जुतियाँ कपड़े की तरह छट गए। ले आओ इन्हों मैंने सिरी में रिकॉर्डिंग की थी जी, स्क्रीन चार नहीं ले आओ इन्हों फाड़ के ले आओ, ना तुहानू इन्हों ले आओ फाड़ के, फिर मेरी तबीयत साफ करो। आमिर रज़ी अमर साहब, भाई कहते पे सुनो, मैंने सीधी रिकॉर्डिंग की थी जी। अच्छा वंस अगेन अच्छा, आमिर कहते रज़ी हैं, साहब, हाँ भाई पप्पू साहब, मैं एक ही मिनट कह रहा बात था कि अगर आमिर रज़ी नबी साहब पाक मेरी बात सल्लल्लाहु अलैहि तो सुन वसल्लम लीजिए। की खबर पर भरोसा कर लेते, ईमान ले आते, तो वही काफी सुन ले आप। लेकिन आमिर ये रज़ी ऐसे साहब, एक बदबख्त बात तो हैं सुन लीजिए। कि इन्होंने सच्चे नबी को, बल्कि सच्चे बात के सुन ले। सरदार को झुटलाया। बदबख्तों ने तरीका नहीं है। सच्चे नबी की खबर पर एतबार ना किया, मुखबर सादक की खबर पर एतबार करने की बजाय एक झूठे मदई नबूवत के पीछे चल पड़े। अब वो झूठा मदई नबूवत इनके तरीका सामने नहीं। झूठ बोल रहा है, और ये 3-3 करें, सौ शर्म- यहाँ पे शर्त हमारे सामने हार रहे हैं, शर्म लेकिन करें। ये नहीं कहते कि इसने झूठ बोला है। करें। अच्छा, उसका सुवर वाली झूठ बात आपकी करें, आंखों के तो सामने सुवर रखा वाली गया कि वो बात का। कौन सी हदीस है जिसमें मिर्ज़ा ये साहब ने लिखा हुआ कहा है, था ना, वो कौन सी तरह हदीस, पड़ जाएंगे, उसका जवाब दो। वो कौन सी हदीस है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जब मसीह मऊद आएगा तो उस पर शर्म कुफर करो, के फतवे शर्म। लगेंगे। उन्होंने कहा कोई ऐसी हदीस नहीं है, हम 300 यूरो दे लेते हैं, लेकिन हम इस झूठे को झूठा नहीं कहेंगे। ऐसी बदबख्त कौम पैदा हुई है। इसकी बजाय बेहतर था कि मुखबर सादिक की खबर पर ईमान ले आते और झूठे को झूठा ही कह देते। लेकिन इन्होंने कहा हमने अपनी आंखों से इसको झूठा देखना है, अपनी आंखों से भी देख लिया, फिर भी नहीं उसको झूठा कहा। आज अपनी औलादों को फंसा के चले गए हैं। हाल ये है कि सारी औलाद अब मुसीबत के आगे चढ़ी है, घड़े में गिरी हुई है। रोज रात को वादा करते हैं कि कल इस झूठे को छोड़ देंगे, सवेरे उसकी वो कौन सी कौम थी फिर असकानी भाई जो दीवार चाटते हैं, वो जूझ मजूज की, वो तो बता दीजिए फिर आमिर रज़ी साहब, झूठे के वो बता पीछे चल दीजिए पड़ते जो हैं। सूरों की तरह पड़ जाएंगे मेरे मालने वाले मिर्जा ने कहा था, वो तो बता दीजिए। हाँ हाँ, वो मैं बताने लगा हूँ कि ये मिर्जा कादियानी के बेटे ने कहा था, जो आप कह रहे क्लोज होता है, जो वापस आएंगे जरा आमिर भाई, कैसी 2 अमन मिनट नज़ीर भाई। नहीं टलिया। अमन नज़ीर भाई अगले ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ ਕਰ, ਚੱਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ। एक थकेगा तो दूसरा आएगा ना। आया तो बाद एक में रिटर्न हो रहे हो तो बस मौलवी ज़ियार रसूल दी बारी हले 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 नु उत्ते ले आए दी तबीयत मैं साफ करा। ये समझदा है कि मैं रेडियो आ के टार टार करांदा ते अगले नु बोलना नहीं आंदा। भोसड़ी दे पहले झूठियां दे पैरोकार, झूठ लैके चलण वाले ते इत्थे आके ते टार टार करदे ने ते समझदे ने भाई अगले नु हरेनी गल नहीं करनी आंदी है। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम, गाली तुझी कड्डी है।
ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਕਿੰਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਲ ਮਨ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ हो गया। मैं एक गाली मैंने भी सुन ली, बहुत गंदी गाली, लेकिन किसने दी मुझे नहीं मालूम। अभी अभी नहीं मैं तो गाल मन तो कढ़नी नहीं आती गाल। मैंने, आपने नहीं, आप किसी ने गाली बीच में भोसड़ी के हाँ हाँ भोसड़ी के कहा, कौन कहा नहीं मालूम, आप नहीं कह रहे थे। भोसड़ी का गाल नहीं होती, भोसड़ी का गाल थोड़ी होती है, वो तो जरबुल मिसल है। ये गाली है भैया। भोसड़ी का भी कोई गाल होती है। लो जी मिसल लो भोसड़ी अच्छा का ये गाल। किसने दी थी वैसे, किसने दी थी? ये आमिर भाई सिल्ली ब्रूजी तौर पर, मैंने दी सिल्ली ब्रूजी तौर पर आवाज आई आपको, लेकिन ये मैं हैरान हो गया। लेकिन आमिर रजी साहब ये बड़ा अफसोस हुआ, बहुत सारी बातें आपने की, ये जो कहा था ना मौलवी खंजीर ये होंगे, तो फिर अभी आ आपने रहा इसका है, अभी जवाब आने नहीं लगा, दिया। ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। अच्छा वो राणा साहब कोई बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ दब रही है। राणा साहब थोड़ा फ़ोन दे कोल होवो प्लीज़, थोड़ी आवाज़ बहुत दूरों आ रही। अच्छा भाई चुप कर दो। खैर जो मैं इसको पप्पू को बात सुना रहा। पप्पू जो आप कह रहे थे ना कि खंजीर और बंदर, जो आप कह रहे थे कि आपके मिर्जा कादियानी ने कहा है कि वो बंदर और खंजीर है, असल बात ये है कि वो किधर गया? तेरे कितनी सीट देते बैठ। ऐतकी तो बड़ी स्पीड पड़ी सू, ਐਤਕੀ ਤੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। हथ ला के दौड़ गए। लो जी लो जी ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲੋ ਵੇਖ ਜੀ ਭੋਸੜੀ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਵਾਲੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। अच्छा नहीं राणा साहब ये तो हथ ला के दौड़ गए ऐतकी। ਮੁਹੰਮਦ ਠੀਕ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲੀ ਸੇਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਤਹਰੀਰਾਤ ਨੇ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੂਜ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ 50-60 ਲਿਖ बैठे ने, पर वो पता नहीं लिख के भुल गए ने, कितने रख दी ने जी। मोहम्मद सेल साहब आपके पास मुझे पता 2 मिनट ही हैं, आपने जो बात करनी है फटाफट कर लें, मुझे पता 2 मिनट ही तो होते हैं आपके पास। 24 घंटे कसरे सलीम की महसूस होंगे। ये 3 फुट का आदमी है, ये बात नहीं करेगा, ये जाहिल आदमी है। ये कहता है मैं जाहिल हूँ, मैं 3 फुट का हूँ, ये नहीं बात करता 3 फुटिया। यूसुफ साहब इन्होंने इतनी सारी किताबें क्या टैक्सी में बैठ के लिखी हैं? जब भी देखो हाँ टैक्सी जी, चला रहा वो हूँ। उधर ही फुर्सत मिलती थी ना। ये पप्पू साहब आए हैं, मेरे ख्याल इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। जी पप्पू साहब सुने आप गौर से, बात सुने करने थे, सारी 1 मिनट की बात करने थे आमिर साहब, 1 मिनट की बात करने थे। ओ पप्पू साहब मैं ये आपको बता रहा था कि जो आप कह रहे हैं ना मिर्जा कादियानी ने कहा है बंदर और खंजीर है, वो मिर्जा कादियानी ने नहीं कहा, उसके बेटे ने ये कहा था कि ये मिर्जाई। अच्छा ਸਹੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਲਾ ਹਟਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਨਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾ। यार ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਅਲਫੀ ਸੱਟੋ ਥੋੜੀ ਜੀ। सीट तिलकनी है ना, कोई और सीट उन्होंने देनी पैनी मुझे लगता है। सेल साहब 2 मिनट आपके पास, मुझे पता है आपने उसके बाद बिजी हो जाना, थोड़ा सा हमें भी मुस्तफीज़ फरमाएं अपने ख्यालात से, अपनी सोच से। कसरे सलीम की ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਸਰੇ ਸਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ। टिकट नहीं लेती है सेल नासर साहब। ऊपर आना पप्पू, ऊपर आ। चल हुण नहीं मैं गल करता, ज़िया भाई गल करते ने, आ जाओ। चल मैं खामोश हो जाना, चल आ जा। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਗੱਲ ਦੇ बात ਜਵਾਬ। करने का मौका दे दें, 1 मिनट बात करने का मौका दे ज़िया भाई दें। से जी जी बिल्कुल, आपको बात करने का मौका देने नहीं का करेंगे मौका। दिया था, बोलना। ना करें। पप्पू साहब 1 मिनट मेरा की एक बात- सवाल है, वो सवाल मेरा ले लें तो फिर उसके बाद बात करें आप, ठीक है जी। बाकी भाई खामोश हो जाए। मेरा सवाल एक ये है आपसे कि मिर्ज़ा साहब के बारे में ये आपकी सीरतुल मादी वगैरह रवायात में लिखा हुआ है, बचपन से लेके इनके काफ़ी वाक़यात लिखे हुए, 2-3 मैं बताता हूँ। फिर मेरा एक सवाल है, वो लिखा हुआ है कि ये बचपन के ज़माने में ना, ये जो गंदे पानी नहीं होते, छप्पड़ होता है जिनमें ये बारिश वगैरह का गंदा पानी, माल पशु जहाँ से गाय भैंस वो पानी पीते हैं तो विच्चे ही वो फोसियाँ कर देते हैं, तो उनमें जाके मिर्ज़ा साहब नहाते थे और बड़े होके इन्होंने दावा किया था कि मैं नबी हूँ। और वो चिड़ियाँ पकड़ते थे, चिड़ियाँ पकड़ के तो सरकंडे से वो ज़िबा करते। सरकंडा पता है ना क्या होता है? सरकंडे के बारे में मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि सरकंडा जो है उसकी शक्ल उज़्व तनासल की तरह होती है, ये मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है। तो वो सरकंडे से वो चिड़ियाँ ज़िबा करते थे। घर जब आते थे तो अम्मा जी उसको रोटी देती थी, तो वो राख लेते थे, रोटी के ऊपर राख ला के
सुन लेना, खा लेते थे। अब इस अकली लेवल का बंदा बड़ा होकर कहता है जी मैं नबी हूँ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। कंधा नु सुना। सेल साहब के 2 मिनट बहुत कीमती हैं। सेल साहब हमें 2 मिनट दे ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। सेल साहब 1 2 3 अपना माइक अनम्यूट करें। अच्छा सेल साहब, ये मिर्ज़ा साहब ने ये जो बात लिखी हुई है कि सरकंडा जो है इसकी शक्ल उज़्व तनासल की तरह होती है, ये कभी आपने इसका कोई लगाया साहब किताब की? ये वाकई सही बात लिखी है? ऐसे आप लोग यार कैसे लोगों को बात करने का मौका नहीं दे रहे हो यार, मेरा सवाल तो ले लेना, फिर बात कर लेना ना। मैं जो आपको बता रहा था कि इस ज़हनी लेवल का बंदा बड़े होके दावा करता है नबूवत का, तो जो बंदे उसको मानते हैं वो पागल हो जाते हैं फिर, क्योंकि जो दावा करने वाला उसका ज़हनी लेवल ये है, उसका अकली लेवल ये है, उसकी हालत ये है कि मोहम्मद अली शाह के साथ जा रहा था वो बटाले में रोज़गार की तलाश में, पैदल जाना था कोई आगे स्टेशन वगैरह तक, तो थोड़ा सा रास्ता गया है तो एक पाँव की जूती उतर गई है। अब जनाब वन व्हीलिंग करते जा रहे हैं, पता ही नहीं चला कि मेरी जूती उतर गई है। वो काफ़ी आगे जाके तो वो जनाब मोहम्मद अली शाह की नज़र पड़ती है, वो देखता हो मिर्ज़ा साहब जुत्ती कितने ताड़ी। मिर्ज़ा साहब पाँव में देखते हैं तो वो जुत्ती तो है ही नहीं। वो मोहम्मद अली शाह फिर पीछे भागता है, वो पीछे भागता है, पता नहीं कोई किला 2 किले 7 किले जाके मिर्ज़ा साहब की जुत्ती लभदा, लभ के लिया के ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ वहाँ शायर ने अर्ज़ किया है कि पता नहीं वो लगदा जुत्ती डिग पई दा ते दावा है नबूवत दा इस नशई दा। तो ऐसे बंदा जब बड़ा होके दावा कर ले नबूवत का, बस बस चलो बस स्टे 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 ब्रेक 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 ब्रेक। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰੇਕ 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 ਬ੍ਰੇਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੱਸ ਪੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੋਂ ਬੱਸ ਪੀ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, अच्छा भाई उसको बात तो कर रहे हो आप, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਈਡੀ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ? अब हो गया ना, उसको बात तो करने दो। ज़िया भाई नहीं ना करने दे रहे, मैं तो करने दे रहा। अच्छा ये पीर आस्तानी भाई वो आपको सवाल बात नहीं पहले करने दे रहा, सुनेगा तो हम फिर उसको बात बात करेगा, करें। नहीं सवाल पूरा सुनता नहीं है, पहले भाग जाता है। ਜ਼ਿਆ ਭਈਆ ਆਪकी सवाल मुकम्मल हो ले, फिर उसके बाद जवाब का मौका देंगे उसको। आपके सवाल हम नहीं सुन सकते, वो क्या सुनेगा, थोड़ा उनको भी मौका दो अब। नहीं सवाल आधे सवाल का की जवाब देगा। अहमद साहब, ज़िया साहब, ज़ैद अस्कानी साहब, बाकी भाइयों को मैं नहीं जानता, उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ज़िया साहब, आपसे एक और सवाल की तस्दीक करनी है यार, ये मुझे पता नहीं है, मैंने सुना है कि वो मिर्ज़ा साहब जो हैं वो मैथ में भी कमज़ोर थे, हिसाब जिसको कहते हैं, तो वो नहीं जब आता था तो इनको मुर्गा शुर्गा बना के तो वो उस तरह की कोई पनिशमेंट मिलती थी, ये बात सच है? देखें जी, मुझे पनिशमेंट का तो नहीं पता कि सच है कि नहीं सच है, लेकिन मैथ कमज़ोर थी ये मुझे पक्का पता है, कन्फर्म पता है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं जी कि अप्रैल में और सितंबर में कहते हैं 4 महीने का फ़र्क होता है। क्या अप्रैल में सितंबर में 4 महीने का फ़र्क होता है? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने तकरीबन बनते हैं। फिर मिर्ज़ा साहब कहते हैं जी कि ये मंगल जो है ना, ये हफ्ते का चौथा दिन होता है, मंगल को कहते हैं चौथा दिन होता है हफ्ते का। फिर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जो है वो सफ़र का महीना जो है ये चौथा महीना होता है, हालांकि ये दूसरा होता है दिन। सितंबर फिर मिर्ज़ा साहब जो है वो जी सितंबर के 31 दिन भी बताए हैं। हाँ जी, सितंबर के 31 दिन भी बताए, जून के भी 31 दिन बताए हुए हैं। जून का महीना भी 31 दिनों का होता है, सितंबर का महीना भी 31 दिनों का होता है। तो ये मिर्ज़ा गुलाम कादिर ये मैथ में बड़ा सख्त कमज़ोर था, ये तो हमें पता है, लेकिन अब ये क्राइन बताते हैं कि जिस तरह ये कमज़ोर था ज़रूर इसको छितर छितर पड़े होंगे कभी अगर कहीं स्कूल गया होगा। ये क्राइन के हमारे मास्टर बैठे हुए हैं ऊपर, अमन नज़ीर भाई, ये क्राइन से बहुत कुछ साबित कर देते हैं। जी जी अहमद भाई बताइए, फिर पनिशमेंट मिलती रही है
या नहीं, ये बता दें। नहीं, असल में ना पनिशमेंट तो उस दौर में मिला ही करती थी। तो पनिशमेंट जो भी बंदा उस्ताद के पास पढ़ता है, बच्चा गलती करता ही करता है और बच्चे को पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। सिर्फ वही है जिसको पनिशमेंट नहीं मिलती जिसने अल्लाह से पढ़ा है, और अल्लाह से पढ़ने वाले वो सच्चे अंबिया होते हैं। सच्चे नबियों को अल्लाह ताला तालीम देता है। वो क्योंकि दुनिया के किसी मास्टर से पढ़ते नहीं, तो दुनिया के किसी मास्टर से उनको पनिशमेंट मिल नहीं सकती। अब ये पढ़ते रहे गुलशाह के पास, उनके बारे में खुद इनका मौसूफ का ये दावा है कि वो अफीम खाया करते थे। तो जिस बंदे ने ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਸੀ जिस अफीमी उस्ताद से एक बंदा पढ़ता है, उसकी अफीम का नशा किसी वक्त ऊपर नीचे हो जाए तो उसने तो फैंटी लगा ही देनी है, भले आपने सवाल सही भी किया हुआ है। तो नेचुरल बात है मिर्जा साहब नीचे हो जाए। वो चाचा साद ये सितंबर और अप्रैल मैथ नहीं है, लेकिन सितंबर और अप्रैल में कितने महीनों का फर्क होता है, कितने महीने बनते हैं, ये मैथ है। किसे मैथमेटिकल मान है बच्चे। एक मिनट की बात सुनने। सवाल तो वज़ीर भाई आपने सवाल अपना पूरा ही नहीं किया। सवाल तो पहले पूछ। सवाल मैं ये आपको सवाल पूछ रहा था पप्पू साहब कि देखें मिर्जा साहब जो हैं इस हालत में होने के बावजूद उन्होंने दावा नबूवत कर दिया। अब जब दावा नबूवत उन्होंने कर दिया तो उसके बाद जिस बंदे ने भी उसको ऐसे बंदे को नबी माना है ना, उसको पागलपन की पिछों भी आ गई बस पिछों बस पागल दी पेट ही नस गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश है सुहेल साहब अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी जिस किताबों में तरीके से ਤੁਸੀਂ कुछ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਲਾਣੀ। सुना ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ये इंसाफ है आप लोगों का, आप लोगों का इंसाफ ये है भाई। जब ये इस अकली लेवल का बंदा जब उसने नबूवत का दावा किया ना, तो उसको मानने वालों को अब पागलपन के झटके लगते हैं। जब उसने दावे करने शुरू किए थे ना तो ब्रेका सुबह दावा किया, शाम को इनकार भी किया। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ ਉਹ। आ गया भाई रुका करो आप उसने दावे करने जब शुरू किए ना तो उस बेचारे को समझ नहीं आती थी कि मैंने दावा करना किस चीज का है। वो इधर उधर से मशवरे करके तो उसने दावा तो जड़ दिया। तो उसके बाद अब उसको पता नहीं चल रहा था कि दावे के लवाजमात क्या होते हैं। दावा कर दिया नबूवत का और कहता है जी मेरे ऊपर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। कौन से फरिश्ते नाज़िल होते हैं? ब्रेक। सुहेल साहब आप इसकी जान छुड़ा सकते हैं अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों। वालेकुम जय अस्सलाम। सिंह का खालसा फतेह सिंह की क्या बोलते हैं यार वो फतेह नहीं आज की सबसे मजे की बात जो है ना, वाहेगुरु वाहेगुरु का खालसा ते वाहेगुरु की। ओ मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਮਰਮ ਰੱਖਣੇ ਆਇਆ ਸੀ यार। ਤੁਹਾਡਾ तो आज अच्छा पहले अपना जुमला तो सुहेल साहब आपने जख्मों पे मरहम रखना है, पहले जुमला तो पूरा कर लें। वो लो आप बात नहीं आपने की शाम के बाद के मेरे पास 2 मिनट है बस मैं बात करके जाना चाहिए, वो पहले कह देना। वो नहीं यार खुला टाइम है, कल छुट्टी है, कोई नहीं प्रॉब्लम। कसम खा टैक्सी इतने भैन कसरे सलीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ। कसरे सलीम हो रही है साਡੀ। ਤੁਹਾਡਾ तो आज वही हिसाब हो गया। पूरी रात देख देख के धमाल पाई ਤੇ सुबह पता ਲੱਗਿਆ देख तो पाक पता नहीं ਚੱਲੀ ਆ। ਹਾਂ ਦੇਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਦੇਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਦਰਗਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਂਦੇ ਦਰਗਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। देख लै गए तो याद आया जिस बंदे ने ढेर साहब मेरे देख लै गए तो गल याद आ गई है कि मिर्जा साहब ना एक बारी अपने आया फिर आया। शुरू करो बिस्मिल्लाह। जा भाई शुरू करो। ये तो नजर नहीं आ रहा। ਉਹਨੇ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾ ਭਾਈ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। अच्छा सुहेल साहब मैनू
ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਗ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਪਾਕ ਪਤਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਰੀਦ ਕੋ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੁਣ ਉਸ ਮਰੀਦ ਕੋਲ। ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਟੀਚੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੀਚੀ, ਮਿੱਠਨ ਲਾਲ, ਖਰੈਤੀ, ਦਰਸ਼ਨੀ, ਹਫੀਜ਼, ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਕੀਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤੌਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ख्वाब वेख्या आज रात एक मुर्गी है, तो जो आवाज़ें दे रही, जब गौर से सुना तो वो कह रही थी कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह से इतने पैसे भेजने वाला है। इंज दी मिर्ज़ा साहब ਨੂੰ ਇਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਆ। ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਝੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਲਾਮ ਕਰਕੇ ਬਤਾਇਆ बीवी ਹੋ ਗਈ ਹਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਦਾਈ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਗ ਫੜਫੜਾਈ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਦਾਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਜੜਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ पेशगोई जड़ दी, मैंने खुदा ने बताया है मेरे घर में बेटा पैदा होगा, बड़ा अजीम शान होगा, गोया खुदा आसमान से उतरा, ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए।